first class cricketer. I played Ranji Trophy from Delhi. And my team on my left is Mr. Gautam Datta. He is an advocate and has been a standing counsel for DCA for a very long time. So he knows each and every legal point which concerns DCA. Everything is on his tips. On my right is Mr. Pool Chand. He is a celebrated coach, cricket coach. He is running 2-3 academies, and most of his guys, a lot of his guys are playing in IPL as well as in UP Ranji Trophy. And one of his guys, under 16 boy, got selected in Delhi yesterday. So, and next to him is Mr. Naveen Chindal. He is a reputed businessman and a lifetime member of DDCA. And we are likely to contest election this coming, if DDCA holds the election. So we are a team which will be contesting for the post of director. So this is what I wanted to tell you about us. So Mr. Datta will brief something about what we have called you for, the purpose of calling you up. Please. Yeah. Essentially, this meet is about the violations of law by the DDCA. DDCA is a company, and under the Companies Act, the DDCA is supposed to hold annual general meeting before 30th of September every year and place before its members the financial details, the annual accounts, so as to say. Now, DDCA has defaulted in holding the annual general meeting on the 30th of September, and we are approaching another 3 months, that is almost 30th of December. Now, if a company doesn't hold the AGM within the stipulated time, it has defaulted, and if the company defaults, then there are legal complications. Now, 31st of December is the last date, but in a company like DDCA, to hold an AGM requires at least 45 days, because you have to settle your accounts, you have to circulate that account to all the members. There are 4,200 members in DDCA. It takes around 21 days is the notice period. Before that, you cannot hold an AGM. 3 days is required to send the annual budget, the finances to all the members through speed post. So it is around 25-26 days. Then, as per Supreme Court judgment, you have to appoint an election officer who is an independent body. That body has to be appointed before 30th of the stipulated date. So even if we take the 31st December to be the cutoff date, still DDCA is nowhere in picture to hold the AGM and the elections. Now what is the reason? We have come here, we have joined here to expose the reasons why it is so. What is the reason why the DDCA has committed this default? And we would not be saying from our mouth. We have already placed documents. The Honorary Secretary of the DDCA has written mails to his fellow board of directors exposing the financial bungling, the fraud which has happened in the DDCA. There are two financial frauds. One is regarding 36 crores of tender. The second is the tickets purchased from Paytm fraudulently. So these are the two reasons why the accounts could not be settled in time, and that is the reason why the AGM was not held. The AGM is not being held in contempt of the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment under the Lodha Committee judgment says 30th September is the cutoff date. You cannot extend it beyond 30th September. Now, as latest as 22nd of November, the Lokpal, that is an ombudsman appointed to the Supreme Court for DDCA, Justice Indu Malhotra, 21st of November, she has also passed a direction to the DDCA that you please hold AGM on time, but still AGM has not been held. So our purpose of meeting here is to give you the entire detail as to why the AGM was not held. We have circulated document. These are mails written by the secretary to his fellow office bearers. He himself raises question that I will not sign the accounts because these are the accounts frauds which has happened. And till the time the account is not settled, AGM cannot take place.
Because in the AGM, you have to circulate the final accounts before the members. So the first thing which we would like to impress upon here to all of you is the reason why the AGM could not be held. Second is the financial bungling. Third is the contempt, the direct contempt of the Supreme Court judgment and the Ombudsman judgment. These are the contempt which has been done by the DDCA. Now what is the fallout? The fallout of this contempt is like in other sports bodies like in Hockey India, Indian Olympic Association, there were administrators appointed. Now DDCA is on the verge of a situation where because of this default, because of this blatant default, there is all likelihood that there will be an administrator to be appointed in DDCA and it will be a dark day for DDCA. We as members of the DDCA, as well-wishers of DDCA, we do not want that. We want the DDCA should comply law and hold AGM and whatever is required under the law, that should be there, be complied with. So in nutshell, it's a death of democracy, so as to say, now in the DDCA. We are against that. So we will be holding a dharna to educate the members. The members are not made aware as to what is happening in the DDCA, such sports body. It's a non-profit body. DDCA is a company which is a non-profit body. You get money from the BCCI to spend it, but somebody is accountable. The elected office bearers, the board of directors are accountable. So that accountability, to ensure that accountability, to honor that accountability, you have to comply with law, you have to hold AGMs on time and declare our accounts. If you do not declare our accounts, then you have to come clean. So the mails we have shared with you, it exposes why the AGM and the financial bungling. I hope you have gone through the mail. So it is self-explanatory, it is in great detail, none other than the secretary of the association himself writing. So this is in a nutshell why we have joined here. Is it a problem with the accounts only or is it a problem of bungling? We don't know. As of now, it is very difficult because whatever little information we have is through the mails which has been exchanged by the secretary. Now, this is a self-explanatory mail which says that the accounts could not be settled despite all his best efforts. He is writing to the accounts department that look, these are the issues which need to be decided. 36 crores of tender bungling and the Paytm ticket purchase in the international match. So he is feeling helpless. As a secretary of the association, he is feeling helpless and he has to sign the accounts. So if the accounts are not being signed, then what is the reason? Normally in a company, it's a normal process of finalizing the account. They are hiding. There is something they are hiding. So Can you elaborate on that? What is not beyond the paper that you have circulated? there is definitely more to it what needs that. Definitely. So we are seeking inquiry. Before that, if they don't come up with this thing, we cannot hold elections. So this is the reason they're procrastinating, because in fact, they will be finding ways to come out of it. Why should we? We're just exposing them. Now they'll be running from pillar to post to settle the account. Because normally and ideally, what should happen in a company, there should be an inquiry which is to be held to unearth the real guilty, who is the guilty. But inquiry not an inquiry. Does this mean that you are asking the president and the secretary to hold an inquiry to the amount that you are figuring out? Obviously. And that too quickly, because we have to hold elections. But because dates are already been, I mean, you're already late behind the date. I mean, 30th December is 31st also. December they have to do. So they are in a tight call. So they have to find ways. We are trying to expose them, whatever documents we have. So tomorrow we are sitting on dharna for this thing only. So today we wanted to tell you what all has happened, and we will be needing your support to cover that dharna on. So we request you so that 4,200 people of DDCA come to know. How are you reaching the 4,200 members? We have sent them mails, we have sent them WhatsApp. A lot of people will be coming tomorrow. And dharna is one of the means through which we'll try to impress upon the members
look, this is what has happened at DDCA. And we are fortunate enough, for the first time, something has come out of DDCA. Otherwise, it's a closed door, environment. Nothing will come out of DDCA. Even the members don't know. They don't come to know what is happening, cooking up in the DDCA. The first time in the history of the DDCA, a secretary is writing himself. He's brave enough. Brave enough. सर, कीर्ति आजाद जी ने भी केस फाइल किया था बीटीसी की चेयरमैन की बॉडी के लिए जो इलेक्शन होना था उसके लिए। उसके बाद जब आपका ये नया अपॉइंटमेंट जब चुनाव हुए लास्ट ईयर, रोहन जेटली जी ने भी जो आपके एपेक्स बॉडी की जज हैं इंदु मल्होत्रा जी, उनको अपॉइंटमेंट के लिए ही उन्होंने सजेस्ट किया था। तो फिर ये बात आ कहाँ से रही है कि जब वो खुद जजमेंट कर रहे हैं, खुद अध्यक्ष भी हैं फिलहाल प्रेजेंट में, और खुद ही एज एपेक्स बॉडी के लिए जजमेंट भी कर रहे हैं कि इनको नॉमिनेट किया जाए, उनको किया भी है। ठीक है। तो अब ये बात अटक कहाँ रही है? फिर ये चीजें क्यों अटक रही है इसमें? क्या यही सिर्फ तो- एक घपले की बात है या कुछ और चीज है? क्योंकि यही तो हम क्योंकि समझना नहीं, चाह रहे सर, हैं। मेंबर तो आपके अभी पूरे भी तो नहीं है ना सर अभी। देखिए, मैंने क्या कहा कि एजीएम क्यों नहीं हो पा रहा है? एजीएम क्यों नहीं पड़ा? ऐसा नहीं है कि एजीएम ये कराना नहीं चाहते थे, वही ये तो। चाहते थे। ये आज ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बंगलिंग और एक्सपोजिशन जो एक्सपोज हो गया है, कि आज ये एक टाइट कॉर्नर में आके फंस गए हैं। अब आप सुनिए मेरे से, 25 लाख की टिकटें पेटीएम से मैं ले आऊं, सर वो तो केस चल रहा है, वो तो केस नहीं चल रहा, केस उन्होंने फाइल हुआ नोटिस है। किया है, सर, केस नहीं चल रहा। केस फाइल हुआ हुआ उसका, कहाँ पे, कौन से कोर्ट? केस उसका क्राइम ब्रांच में केस फाइल किया टिकटों का। अब आप सुनिए, मैं बताता हूँ। 25 लाख की टिकट किसी ऑफिस बेरर ने ले लिया, एक तो वो ले नहीं सकता वो तो हो नहीं सकता। क्योंकि अब वो पैसे 25 लाख जमा नहीं हुए पेटीएम को, वही नहीं हुए। पेटीएम पैसा मांगती है अपना, वो पैसा कौन देगा? अगर ये ऑफिस बेरर पैसा देता है तो व्हाइट में देना पड़ेगा, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? डीडीसी देती है तो डीडीसी नहीं दे सकती, क्योंकि डीडीसी टिकट परचेज ही नहीं कर सकती। टिकट परचेज करने का हक डीडीसी को नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेटीएम ऑथराइज वो थी वेंडर जिसने आगे टिकट सेल करना था। तो ये कुछ कारण है, ये है फ्रॉड जिसके कारण ये गाड़ी अटक गई। आप जिनके नाम ले रहे हैं उनके सारे अच्छे मतलब नियत के बावजूद किसी 2-4 लोगों के चक्कर में ये गाड़ी अटक गई। लेकिन इस गाड़ी को चलाना तो पड़ेगा ना। अगर आप इस गाड़ी को नहीं चलाते हैं, इंक्वायरी नहीं करते हैं, और खराब होती जाएगी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे धरना के थ्रू कि इसका हल निकाला जाए। सेटल किया जाए जल्दी से। टेंडर का मामला तो पिछले साल भी था, उसमें भी बता रहे थे टेंडर तो पिछले साल का ही चल रहा है। लेकिन वो कागज सामने नहीं आए थे, अब ये पहली बार कागज। तभी तो एजीएम हुई थी, तभी तो चुनाव हुआ ही था ना सर। कागज नहीं थे ना कुछ। कागज नहीं थे ना। वो देखो, अब कुछ एलिगेशन फ्लाई करते हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन आज कागज है। आज पहली बार कागज है सामने, और षड्यंत्र भी सामने दिख रहा है। अब पिछली बार उन्होंने एजीएम कर लिया था ना, अब क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों नहीं कर रहे? देयर हैज टू बी सम रीजन ना, कोई ना कोई कारण तो होगा जो कोर्ट नहीं का कर रहे। फैसला, लोकपाल का फैसला, उसके सुप्रीम बाद कोर्ट नहीं ने कर कह पा दिया, लोकपाल ने कह दिया, ओम्बड्समैन अपने शोर में जाम जाए कह रही है कि करो करो, और फिर भी इट हैज टू हैपन। उन्होंने लिखा ऑर्डर में, इट हैज टू हैपन फॉर 31st ऑफ दिसंबर, और नहीं कर रहे तो देयर हैज टू बी सम रीजन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो कोई बिल्कुल। एक्शन नहीं हुआ। होगा ना, कंटेम्प्ट होगा। अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फाइनल तो वही जाकर गाड़ी रुकेगी। 31st से पहले तो नहीं जा सकता ना, कोई भी नोबडी कैन गो। सर आपका ये कॉलम है, और लीगल एडवाइजर मिस्टर सौरभ चड्ढा सेल प्रोवाइड ओरिजिनल मिनट बुक। हाँ। अब आप देखिए सेक्रेटरी साहब क्या लिख रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को मिनट बुक तक नहीं दिए जा रहे हैं। वो भी नहीं। अब आप सोचिए, तो ये सर साल में कितनी मीटिंग होती है फिर बॉडी के हिसाब से जो अफेक्ट ये नहीं टेंडर कमेटी की भी मीटिंग होती होगी, मैच के लिए मैच होल्ड करने के लिए कमेटी होगी, उसकी मीटिंग, एपेक्स काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो होती है, मीटिंग तो होती है। कंपनी है, कंपनी को तो अपने प्रोसेस से चलना चलना है। ही। लेकिन सेक्रेटरी कस्टोडियन है ऑल रिकॉर्ड्स का, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और उसको दिखाई भी नहीं जाती। उसको दिखाया नहीं जा रहा है। आप समझ रहे सिचुएशन कहाँ जाके फंस चुकी है गाड़ी, कि सेक्रेटरी के से भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। So you feel pity for the secretary or you feel that secretary is being victimized? He is a board secretary. Why should you feel pity about him? He is the one who has taken the courage to expose. Brave enough to- Brave enough. We are thankful to him. Otherwise, किसी को पता नहीं As चलता। members, we are thankful to him. Members of DDC. बीसीसीआई और पीटीसीए का जो नॉर्म्स है उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ पे तो 3 साल की अपन बॉडी जो भी है चल बनती है उधर से, तो क्या वो देखिए बीसीसीआई, सबसे पहली बात तो बीसीसीआई एक सोसाइटी है, सोसाइटी ये भी तो वहाँ सरकार नहीं, ये कंपनी है। यहाँ पे
ये कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी है हमारी। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो सोसाइटी है बीसीसीआई, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड सोसाइटी है। डीडीसीए एक कंपनी है, आरओसी में इस कंपनी के अपने नियम कायदे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि आप इंडिपेंडेंट, स्वायत्ता दी गई है अंडर द जजमेंट कि आप कंपनी है तो कंपनी चलाइए, बट मोटे तौर पर जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की उसको मानना है। तो मोटे तौर पर गाइडलाइन क्या है? आप 30 सितंबर तक एजीएम करेंगे, आप अकाउंट्स 30 सितंबर तक घोषित करेंगे, ये गाइडलाइंस है बेसिक। 70 साल से ऊपर वाला कोई भी डायरेक्टर या किसी पद पे नहीं रह सकता, 9 साल से ऊपर किसी पद पे वो नहीं रहेगा। ये मोटे तौर पे ये गाइडलाइंस थी। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात आती है बीसीसीआई के सिस्टम, बीसीसीआई ने अपने टाइम सिलेक्शन कर लिया, एजीएम कर लिया, डीडीसी ने क्यों नहीं किया? करना भी क्या था, वो तो बैठा के नॉमिनेट कर दिया। क्यों भी क्या वो लॉ कानून संगत तो काम हुआ ना, आपको भी पता क्या हुआ, मगर हुआ। कुछ लोग नाराज होंगे, वो अलग बात है, पर्सनल विंस तो ठीक है, लेकिन पेपर यहाँ तो कंप्लीट आप कर कुछ भी नहीं कर रहे। सर इसमें मेंशन भी है कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के मैच की वजह से डिले भी हुआ था। क्या हुआ था? मैं बता दो कि 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हैं ये आरओसी से फॉर सम रीजन, एंड द रीजन दिस टाइम द गेम वाज 11 अक्टूबर को इंडिया साउथ अफ्रीका मैच है, इसलिए 3 महीने का एक्सटेंशन दी। अब वो 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली जो ओम्बड्समैन है उन्होंने ऑर्डर किया कि 3 महीने की आपको एक्सटेंशन मिल गई थी, अब 31 दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे और 31 दिसंबर से पहले आपको इलेक्शन एजीएम करनी है, उसमें इलेक्शन होगा। रिपोर्ट ये भी बुधवार को शायद मीटिंग भी कर रहे हैं सर, रिपोर्ट ये भी है बुधवार को। अभी कोई information नहीं। कल बुधवार की हुई उसकी रिपोर्ट ये भी है। देखिए किसी मीटिंग करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है 7 दिन का। हाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन कल तो मीटिंग कोई हुई है। information नहीं है। तो कल जो मीटिंग है वो किस बेस पे कर रहे हैं? नहीं कौन सी होगी, मीटिंग है? अगर होगी तो पता नहीं कैसे होगी। होगी तो अच्छा है, हमारे डीडीसी के लिए अच्छा है, अच्छा हो जाए। अच्छा है, इनके आँख खुल जाए, अच्छा, पहले अच्छा, अच्छा आपका इसका मतलब बेटर सेंस आपका प्रोवेल बिल्कुल। अच्छा कर लें तो अच्छा है, हम तो चाहते हैं। चाहते हैं कि रिजॉल्व हो, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हो, हम इसलिए खराब हो। एसोसिएशन का नाम खराब ना हो, क्रिकेट का नाम बदनाम ना हो, तो चाहते हैं हम तो चाहते हैं सब कुछ स्मूथली चले। स्मूथली चले। और डीडीसी में क्या है कि 5 डायरेक्टर्स, जो 7 डायरेक्टर्स होते हैं इलेक्टेड, 5 जो ऑफिस बेरर हैं उनकी 3 साल की टर्म होती है, जो आप पूछ रहे थे, और जो 7 डायरेक्टर्स हैं उनका एवरी ईयर बाय रोटेशन होता है, उसमें जो 4 जो होंगे उनका रोटेशन से इलेक्शन होगा, तो उसके लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, अभी इन्होंने वो भी नहीं किया। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि 1 महीने का प्रोसीजर है पूरा, तो दे मस्ट स्टार्ट बाय 30 नवंबर, अगर नहीं करते तो दे विल नॉट बी एबल टू। जैसे 1 दिसंबर से लास्ट इज द लास्ट, तो टाइम इज रनिंग आउट, तो दैट इज व्हाई हम बोल रहे हैं कि जल्दी से करो, अदरवाइज एक एजेंट को कंडक्ट करने के लिए 40-45 दिन का टाइम चाहिए होता है, उसमें बहुत सारी चीजें। शॉर्ट नोटिस में तो हो जाता है सर, इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस में ठीक है जी। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती, एजीएम नहीं होती ना शॉर्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक दिन है, आपको पहले से पता है, पहले से तो उसकी उसमें इमरजेंसी आप नहीं कोई प्ली ले सकते। इमरजेंट मीटिंग इसकी तो हो सकती है, एपेक्स काउंसिल की मीटिंग तो हो सकती है इमरजेंट, मगर एजीएम तो टाइम नोटिस है, नोटिस है, पार्टी है, मेंबर को नोटिस बैलेंस शीट चाहिए। उनके क्लोज लेने हैं, सारी चीजें। वो तो पहले कानून में लिखा हुआ कि आपने करना है, आपको तो 1 साल पहले से पता है, उसको डिले करने का आपके पास कोई प्ली नहीं है। ये तो नहीं सर इसका कहीं यदि एजीएम होगा तो क्या आप ये जो लास्ट पॉइंट है आपने जो लिखा है उसके लिए आप पुश करेंगे? लास्ट पॉइंट कौन सा? क्लब जरूर करेंगे, वो उनका राइट्स बनता है, क्लब हर जगह है, हर क्लब को क्या नाम है वोटिंग राइट्स है हर जगह और है। जो डीडीसी में पैसा आता है क्रिकेट के लिए आता है, आप क्रिकेट को क्लब को बीसीसीआई के सारे स्टेट्स क्लब में ये एप्लीकेबल है। हाँ, जी। आप कैलकाटा देख लें, CB बॉम्बे देख लें, हर बॉम्बे जगह देख है। लें। लोधा कमेटी ने भी कहा कि क्लब तो ये बेडरॉक है, क्रिकेट की बेडरॉक क्लब्स हैं, यहाँ से ही टैलेंट आते हैं, ये कोई सोशल क्लब नहीं है। तो इससे पहले आप लोगों ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? जब जा हुआ जब जा ये हुआ कई सालों से ये डिमांड हो रही पहले है। नहीं किया इसलिए आज भी नहीं करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं लगाया जाए कि आप इलेक्शन के लिए खड़े होंगे इसलिए ये अभी से आप एजेंडा सेट कर रहे ये हैं। हमारे मैनिफेस्टो में लास्ट ईयर भी था, उससे पहले 2018 से हम बोल रहे हैं, क्लब्स तो बहुत सालों से मांग रहे हैं। 2018 लोधा कमेटी 2018 में आई जजमेंट, तब से हम मांग उसके बाद से मांग रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये क्रिकेट ही डीडीसी को चलाती है, क्रिकेट के लिए ही सब कुछ होता है, और क्लब जो सेक्रेटरीज हैं, क्लब्स के जो भी नुमाइंदे हैं, उनको एंट्री तक नहीं दी जाती है डीडीसी के अंदर, उनको कोई फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना है डीडीसी की कि जो
क्रिकेट है जो क्लब क्रिकेट चलाते हैं, क्रिकेटर को प्रमोट करते हैं, इतने प्लेयर्स बनाते हैं, उसकी वजह से डीडीसी चलता है। और उन क्लब के जो सेक्रेटरीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको डीडीसी में आना भी अलाउ नहीं है अंदर, बिना उनके कोई कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो तो अपने रिश्तेदारों को टिकट भी नहीं दे सकते हैं। हाँ सही बात है। अपने जानकारों को टिकट भी दे सके तो किसी गेस्ट को बुला लें। नहीं बुला। सर कल जो धरना है उसमें कौन कौन जुड़ने वाला है? हम लोग बैठेंगे और उसके अलावा मेंबर्स आएंगे। लगभग कितने मेंबर होंगे? 10 to 5 है। अपनी कन्वीनियंस पे कि हर हम किसी को तंग नहीं कर रहे, अपनी अपनी कन्वीनियंस पे लोग आएंगे। उसमें जो पुराने डायरेक्टर्स भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जो पहले रह चुके हैं डीडीसी के, उनमें वो भी बहुत सारे आएंगे। अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है, करीब 300-350 मेंबर्स आएंगे थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे। कोई सुबह ब्रेकफास्ट में आ जाए, कोई लंच में आ जाए, कोई इवनिंग स्नैक्स और आप भी वेलकम। वेलकम आप आइए फॉर ऑल द मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी। तो नोटिस किसको दोगे फिर आप? जी सर। आप प्रदर्शन कर रहे हो, उसका नोटिस किसको दोगे आप? किसी को वी डोंट नीड किसी टू को भी इन्फॉर्म। consider सांकेतिक धरना हमने है। सांकेतिक है, सांकेतिक। सांकेतिक है। हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन ले ली है, which was required। बाकी हमें किसी को पता नहीं। अपने मेंबर्स को हम बता रहे हैं। हम तो गांधीवादी तरीके से सांकेतिक धरना करेंगे। हमने किसी से झगड़ना नहीं, किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे हम चुपचाप नहीं, उनको कहने का मतलब था, आर यू गिविंग ए मेमोरेंडम टू द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी फॉर व्हाई यू आर होल्डिंग दिस धरना एंड द कंसर्न दैट यू वो तो आपकी तरफ से चला ही जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से चला ही जाएगा, उनको तो पता लग ही जाएगा, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है देने की। अदरवाइज हमने कोई हमको उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोसेस से काम करना है, सेफ क्रिकेट। सर ओनली मेंबर्स ही इसमें भाग लेंगे, हाँ मेंबर, आउटसाइडर तो नहीं? आउटसाइडर कोई नहीं हो सकता। उनका नहीं, मतलब क्लब्स के जो वो है वो भी लेंगे। दिल्ली में एफिलिएटेड क्लब 80 एफिलिएटेड क्लब्स 81 एफिलिएटेड क्लब है। उन 81 प्राइवेट एफिलिएटेड क्लब्स की ही मेंबरशिप की बात है, सिर्फ केवल 81। इट वोंट कॉस्ट एनीथिंग। अगर आप डीडी से चाहे तो उनको सब कुछ दे सकते हैं, उनको हम मेंबरशिप क्यों नहीं देते? उनको मेंबरशिप वोटिंग राइट दें, उनको नहीं देते। जबकि सब स्टेट्स में, हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट में, और जबकि क्रिकेट जो चलती है वो क्लब से ही चलती है। इवन विराट कोहली भी खेला तो क्लब से खेला, शिखर धवन खेला, ऋषभ, कोई भी खेला पहले क्लब के खेल के इंडिया खेले ना। तो क्लब से तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किसी को इसको किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं है, संजय जी को सॉलिड से खेले हुए हैं। किसी को भी नहीं। किसी भी क्लब को नहीं। और यहाँ के आर्टिकल्स में जो संविधान है वो कहता है डीडीसी की कि किसी भी प्लेयर को विराट कोहली को भी अगर दिल्ली टीम में सिलेक्शन होना है क्लब के थ्रू होगा, आउटसाइड द क्लब कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई भी हो जाए। आपने भी देखा होगा 16-19 की जो लीग हुई है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे ही सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और वही क्राइटेरिया है कि क्लबों से बच्चे आए, क्लबों की टीम में आई, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, उनके मैचेज में, देन उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ तो है। हमें क्लब को तो जिंदा रखना है। और उसके बावजूद भी क्लबों के लिए कोई कुछ भी नहीं है। So anything you- Any more questions, sir? और कोई सवाल? जितने भी क्लब्स आप बता रहे हैं, इनमें से किसी भी क्लब को मतलब वहाँ पे इजाजत नहीं दी जा रही है? किसी भी क्लब को कोई ऐसा Body में। क्योंकि उनको मेंबरशिप नहीं दी गई है ना, तो एंट्री मेंबर्स के लिए है, और क्लब इज नॉट अ मेंबर, तो इसलिए क्लब मांग रहे हैं कि हमें मेंबरशिप का एक एक हक दीजिए। वोटिंग राइट दे दो, उस एक हक कार्ड के दे साथ दो। वो डीडीसी के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड होंगे। सर जैसे एक बार फिर आप सब कह रहे हैं कि बैठने हैं, तो फिर यहाँ से अब आगे और क्या? अभी तो फिलहाल बैठे हैं हाँ, और होपफुली बेटर से मुश्किल प्रिवेल एक काम करेंगे। ठीक, अभी तक तो हमारा यही EGM कॉल करेंगे। EGM कॉल करेंगे और थिंग्स विल रन स्मूथली। दिस इज व्हाट वी आर होपिंग एंड प्रेइंग। This is the first time that this AGM postponement has happened, and which is leading to the possible appointment of ombudsman, लोधा कमेटी administrator. लोधा जजमेंट के बाद ये पहला वाक्य है। 18 लोधा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कभी भी किसी एसोसिएशन को हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह की वो दिखाए गो अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ। ये पहली बात हुआ है, तो वो कारण हम बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है। सर ये कंपनी का भी तो समझ है ना, किस एक्ट में कंपनी अप्रूव है, कौन सा एक्ट? सेक्शन 8 की कंपनी है। सेक्शन 8 की कंपनी, अब 13 हो गया सेक्शन, वो सेक्शन 13 कंपनीज एक्ट में, उसके अंदर जो चैरिटेबल बॉडीज होती है, नॉन प्रॉफिट बॉडीज हैं, उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन देती है एज ए कंपनी। वो नॉन प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट शो नहीं कर सकते, वो नॉन प्रॉफिट है, चैरिटेबल कहते हैं उसको।
जैसे स्पोर्ट्स बॉडीज हो गई और कोई लिटरेरी बॉडी हो गई, कोई हॉस्पिटल हाँ, तो उस तरह के बॉडीज को रजिस्ट्रेशन मिलती है सेक्शन 13 के अंदर। लेकिन उनको कानून तो मानना है, आपको एजीएम करना है, अकाउंट्स अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप तो नॉन प्रॉफिट हो, आपके पास बीसीसीआई से पैसा आया, आपने खर्च कर दिया, लेकिन आपने छुपाने के लिए जवाबदेही कहाँ है? छुपाने के लिए होना ही नहीं चाहिए आपके पास। बैलेंस शीट तो बनानी है उन्हें। क्योंकि वो इनकी तो बता दीजिए आपका क्या अनुमानित प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है, इसके पीछे की राज क्या है? यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अभी रेट करने से ये तो बताना आपको। जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर हमें पता होता तो हम जरूर चीख चीख के बता रहे होते आपको। इसी में तो आपकी मदद चाहिए कि पता करिए डाले कि- हैं, उनका रिस्पांस नहीं आया। किसका? जो हमने मेल्स देखी है, जो सेक्रेटरी साहब ने अभी तक मेल्स नहीं। नहीं आया। वो तो मतलब आपका कहना है कि आपने उनको पहले इन्फॉर्म किया, मेल्स डाले, तब तक उनका कोई आपको मेल रिप्लाई हमने मेल नहीं डाली। नहीं, आपका इंटरनल मेल है ये। ये ये इंटरनल तो में। इंटरनल सेक्रेटरी ने डाला। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में आपस में हमने कोई अच्छा इंटरनल डीडीसी की जो गवर्निंग बॉडी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो जो टेस्ट मैच होना है उसका क्या होगा, पोटेंशियल टेस्ट मैच इन दिल्ली? क्रिकेट को तो हम नहीं चाहते कोई नुकसान हो। क्रिकेट तो होनी चाहिए क्रिकेट और होनी चाहिए। क्रिकेट से तो हम सब कुछ पहली बार टेस्ट मैच आ रहा है। हाँ, बहुत दिनों बाद, कई हजार साल बाद।